আছে মা ছুরে কামে ভাই কেতে না এখন এসে বলছে মুলি গান তুমি কাজ করলে লাঠি করে বে এই বাতো বল দাদা এই তুমি গানে এটা জোরে কথা কে কি বলতো রাখা খুনে তোমার তো মুলি গানে মা এখন মতো জায়গায় বাড়ো তুমি তো জায়গায় বকাচ্ছো মতো জায়গা বকাচ্ছো তুমি ওই জায়গায় যাই বকাচ্ছো তা তুমি এই ও কই না ভাই যাবে কাজ করে ওয়াক করতে নাই বে তো বললে বাদ ছিলে মানে নিজে ও মনে হচ্ছে বুঝছি কিনে জোরে কথা আমি হেডি মুতি দেব মিটি দিতে ও জীবন হেডি মুতি দেব বাদ ছিলে আর নিজে জীবন আছে মা ছুরে কামে ভাই কেতে না এখন এসে বলছে মুলি গান তুমি কাজ করলে লাঠি করে বে এই বাতো বল দাদা এই তুমি গানে এটা জোরে কথা কে কি বলতো রাখা খুনে তোমার তো মুলি গানে মা এখন মতো জায়গায় বাড়ো তুমি তো জায়গায় বকাচ্ছো মতো জায়গা বকাচ্ছো তুমি ওই জায়গায় যাই বকাচ্ছো তা তুমি এই ও কই না ভাই যাবে কাজ করে ওয়াক করতে নাই বে তো বললে বাদ ছিলে মানে নিজে ও মনে হচ্ছে বুঝছি কিনে জোরে কথা আমি হেডি মুতি দেব মিটি দিতে ও জীবন হেডি মুতি দেব বাদ ছিলে আর নিজে জীবন আছে মা ছুরে কামে ভাই কেতে না এখন এসে বলছে মুলি গান তুমি কাজ করলে লাঠি করে বে এই বাতো বল দাদা এই তুমি গানে এটা জোরে কথা কে কি বলতো রাখা খুনে তোমার তো মুলি গানে মা এখন মতো জায়গায় বাড়ো তুমি তো জায়গায় বকাচ্ছো মতো জায়গা বকাচ্ছো তুমি ওই জায়গায় যাই বকাচ্ছো তা তুমি এই ও কই না ভাই যাবে কাজ করে ওয়াক করতে নাই বে তো বললে বাদ ছিলে মানে নিজে ও মনে হচ্ছে বুঝছি কিনে জোরে কথা আমি হেডি মুতি দেব মিটি দিতে ও জীবন হেডি মুতি দেব বাদ ছিলে আর নিজে জীবন আছে মা ছুরে কামে ভাই কেতে না এখন এসে বলছে মুলি গান তুমি কাজ করলে লাঠি করে বে এই বাতো বল দাদা এই তুমি গানে এটা জোরে কথা কে কি বলতো রাখা খুনে তোমার তো মুলি গানে মা এখন মতো জায়গায় বাড়ো তুমি তো জায়গায় বকাচ্ছো মতো জায়গা বকাচ্ছো তুমি ওই জায়গায় যাই বকাচ্ছো তা তুমি এই ও কই না ভাই যাবে কাজ করে ওয়াক করতে নাই বে তো বললে বাদ ছিলে মানে নিজে ও মনে হচ্ছে বুঝছি কিনে জোরে কথা আমি হেডি মুতি দেব মিটি দিতে ও জীবন হেডি মুতি দেব বাদ ছিলে আর নিজে জীবন আছে মা ছুরে কামে ভাই কেতে না এখন এসে বলছে মুলি গান তুমি কাজ করলে লাঠি করে বে এই বাতো বল দাদা এই তুমি গানে এটা জোরে কথা কে কি বলতো রাখা খুনে তোমার তো মুলি গানে মা এখন মতো জায়গায় বাড়ো তুমি তো জায়গায় বকাচ্ছো মতো জায়গা বকাচ্ছো তুমি ওই জায়গায় যাই বকাচ্ছো তা তুমি এই ও কই না ভাই যাবে কাজ করে ওয়াক করতে নাই বে তো বললে বাদ ছিলে মানে নিজে ও মনে হচ্ছে বুঝছি কিনে জোরে কথা আমি হেডি মুতি দেব মিটি দিতে ও জীবন হেডি মুতি দেব বাদ ছিলে আর নিজে জীবন আছে মা नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर के अलग अलग चैनल्स पे मुझे देख रहे हैं। अभी मेरे आने से पहले एक वीडियो आप देख रहे थे कि एक बंदा है, उस बंदे का नाम आरा शेख है, मुस्लिम है। वो हिंदू मंदिर में जाता है, शिवलिंग के पास पेशाब करता है, लोगों से वहाँ उसकी झड़प होती है। ये घटना बांग्लादेश की बिल्कुल नहीं है, यह घटना कोलकाता के मुर्शिदाबाद की। यह सुनने में बड़ी असामान्य सी घटना है, जहां एक तरफ विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है। पूरे विश्व भर के मुसलमान फिलिस्तीन के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं, साथ देने का नाटक कर रहे हैं। भारत के भी मुसलमान कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमानों में से एक उनका भाईजान जो है, वो हिंदुओं के एक पवित्र मंदिर में जाता है और ऐसा कुकृत्य करता है। कहीं कोई लाइव डिबेट नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई पक्ष से या विपक्ष से कोई इस पर कोई बड़ा बयान नहीं। ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ यही दर्शाता है कि हिंदू हिंदुस्तान में सनातन धर्म को मानने के कारण मानते मानते आज संविधान को मानने लगा है, और संविधान को मानने की वजह से हम इतने बड़े सेकुलर हो चुके हैं कि इस घटना के बाद भी हम आक्रोशित नहीं हो पा रहे हैं। अब
सबसे बड़ी बात ये है अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, वो आपसी विवाद रहा होगा। गांव में बहुत सारे विवाद होते हैं, लेकिन विवाद का मतलब ये नहीं होता है कि कोई किसी के धार्मिक स्थल पे जा करके ऐसा कार्य करे। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया आरा शेख को, और ऐसा कहा जा रहा है कि वह एक मानसिक रोगी है। ये जो लोग कह रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि जो मानसिक रोगी है, क्या उसने किसी मस्जिद में, किसी मजार पे जाके ऐसा कुकृत्य किया है, दुष्कृत्य किया है? अगर किया है तो मैं मान लूंगा कि ये मानसिक रोगी है, हालांकि इसने ऐसा कुछ किया नहीं। एक बार आप उस वीडियो को फिर से देखें पुनः। कोई ना भाई जाबे आजकल वहां कुछ नहीं बे कौन बात छिले मन निजे जीवन ओ मना से उचित नहीं ने जो रहता से हम हेगु मुतिदबो मिची दिल तो और जो हेगु मुतिदबो बात छिले और निजे जीवन रहता से वहां छूरे का मैं भाई करती है ना लेकिन ऐसा कुछ है मूल्य कर दूंगा आज खोल ले लाठी कोई दे बे ए बात बोल रहा ए तुम मूल्य कर निजे जीवन रहता है के किलो तू रखा खुने तुम मूल्य कर मार के मुझे जगह भागो तुम उतरेगा बच्चा तुम उतरेगा बच्चा तुम मुझे दे जाए बच्चा तुम मूल्य कोई ना भाई जाबे आजकल वहां कुछ नहीं बे बात छिले मन निजे जीवन ओ मना से उचित नहीं ने जो रहता से हम हेगु मुतिदबो मिची दिल तो और जो हेगु मुतिदबो बात छिले और निजे जीवन रहता से वहां छूरे का मैं भाई करती है ना लेकिन ऐसा कुछ है मूल्य कर दूंगा आज खोल ले लाठी कोई दे बे ए बात बोल रहा ए तुम मूल्य कर निजे जीवन रहता है के किलो तू रखा खुने तुम मूल्य कर मार के मुझे जगह भागो तुम उतरेगा बच्चा तुम उतरेगा बच्चा तुम मुझे दे जाए बच्चा तुम मूल्य कोई ना भाई जाबे आजकल वहां कुछ नहीं बे बात छिले मन निजे जीवन ओ मना से उचित नहीं ने जो रहता से हम हेगु मुतिदबो मिची दिल तो और जो हेगु मुतिदबो बात छिले और निजे जीवन रहता से वहां छूरे का मैं भाई करती है ना लेकिन ऐसा कुछ है मूल्य कर दूंगा आज खोल ले जी, तो आपने देखा किस तरीके से ये दुष्कृत्य कर रहा है कि यहाँ पे मंदिर में जाता है, पेशाब करता है, लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लोग नहीं मानते, ये नहीं मानता है। अगर ये सोचिए कि ये अगर बिल्कुल उल्टा हुआ होता तो आज क्या होती स्थिति। आज सारे जितने लिबरल्स हैं, सेकुलर्स हैं, जितने तथाकथित विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, फिल्मकार हैं, आज तख्ती लटकाए हुए दिल्ली के पटेल चौक के पास धरना स्थल है, जंतर मंतर पर पाए जाते और बड़ा बवाल मचाते। कुछ लोग यूएन में लेटर लिख देते, कुछ लोग इंटरनेशनल इंटरवेंशन की बात करते कि भैया भारत में जो है मुसलमान सुरक्षित नहीं है, देखिए क्या हो रहा है। लेकिन इस घटना के बाद वो सारे लोग वैसे शुतुरमुर्ग की तरह हैं जो रेत में अपना सर घुसा के सो रहे हैं। इस कार्यक्रम को बहुत सारे लोगों ने पहले भी देखा होगा। इस वीडियो को मैं अपनी बातों के मार्फत, अपने विचारों के मार्फत इस वीडियो को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहुंचाने के पीछे एकमात्र कारण है कि क्या भारत के खास करके वेस्ट बंगाल में स्थितियां हिंदुओं के साथ विपरीत हो रही हैं और वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि वहां वो गिरफ्तार हो चुका है और ऐसा कानून अपना काम कर रहा है, कानून हाथ में लेने की मतलब कानून हाथ में अपन नहीं ले सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ
इतना भर कह देने से इनका मनोबल टूटेगा। हमें भी पता है कि ये क्या चाहते हैं और इन्हें भी पता है कि ये क्या चाहते हैं, फिर भी बहुसंख्यक समाज जो है हिंदुस्तान का, वो इन पे रहम दिखला रहा है। क्यों रहम दिखला रहा है? ये इसका गलत फायदा उठाते हैं और मतलब कितनी ढिठाई के साथ, ढीठता के साथ ये मंदिर में जाता है, बेल्ट उतारता है, अपने जिप को डाउन करता है, वहां पेशाब करता है। सोचिए जरा, जब ये लोग यहाँ अल्पसंख्यक समाज से बिलोंग करते हैं, अगर ये बहुसंख्यक हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारे लोग कहेंगे कि चंदन झा तुम सेक्युलर नहीं हो, तुम कॉम्युनल हो, तुम हिंदू मुसलमान के भाईचारे को मतलब बर्बाद करना चाहते हो, खराब करना चाहते हो। तो मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगा भाई कि आपको जो लगता है वो लगे। आप किस सपने में जी रहे हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज मैंने देखा उस पर बोलना मेरा वाजिब है, मैं बोलूंगा। और अगर मैं नहीं बोलता हूं तो मैं भी उन अब क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं, हिंदू आबादी के लोग हैं, जो इस वीडियो को देखने के बाद शेयर तो छोड़ दीजिए, किसी से चर्चा तक नहीं किया हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ घटनाएं जो मैंने नोट डाउन किया हुआ है मैं बताता हूँ। आज़ाद मैदान में ऐसे ही एक प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट खत्म होता है, उसके बाद कुछ इन्हीं मुस्लिम प्रजाति के लोग, मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग वहां अमर जवान ज्योति जो जल रही थी उसको पैर से मार के तोड़ते हैं। आज भी वो वीडियो और वो जो पिक्स है गूगल पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मानसिक रोगी हैं जो इस टाइप की घटना में पाए गए हैं। कुछ का नाम है, मैं बता देता हूँ। इंदौर के एक शिव मंदिर में हस्त मैथुन करते हुए वशीम का वीडियो वायरल हुआ था। गोरखनाथ पीठ में अहमद मुर्तजा अब्बास नामक मुस्लिम व्यक्ति ने चाकू से लोगों पे हमला किया था। और ये वो मुर्तजा है जो IIT से पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर बंदा था। सोचिए, इनके पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल भी ऐसे ही सोच रखते हैं, तो कमी कहाँ है? आप और बताते हैं। हैदराबाद में बुर्काधारी 2 मुस्लिम महिलाओं ने एक मंदिर में घुसकर देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में रमीज ने मंदिर का ताला तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ी थी। यह सब आपको अखबार में मिल जाएगा, गूगल में सर्च कीजिएगा, एकदम क्लियर मिल जाएगा। मेरठ में भी शोएब शिवलिंग पे पेशाब करता पाया गया था। मुंबई के सेंट माइकल चर्च में दाऊद अंसारी ने क्रॉस को तोड़ा, वहां पे तोड़फोड़ मचाया और चले गए। ऐसे कुछ उदाहरण है मेरे पास। अब ये बताइए, ये तो हो गई, चलो ये मुर्शिदाबाद की घटना है, ये कुछ ये सब सारी घटना हो गई। आज पूरे विश्व के सारे मुसलमान, विश्व को छोड़ देते हैं, भारत के बहुत सारे मुसलमान फिलिस्तीन को लेकर चिंतित रहते हैं कि भैया फिलिस्तीनों पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हम लड़ने जाएंगे। एक मोहतरमा तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट लेकर के पहुंच गई थी दिल्ली में कि भैया वीजा दे दो हमें, हम जाएंगे, लड़ने जाएंगे और ये और वो। लेकिन जो जहां रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के बहुसंख्यक आबादी के साथ इनका क्या सोचना है, ये वीडियो बिल्कुल दिखा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति का, इनके समाज के एक इंटेलेक्चुअल का, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ही मैं कहूंगा उन्हें, किसी ने भी इसका प्रतिकार नहीं किया। प्रतिकार नहीं करना भी एक तरीके से सपोर्ट करना ही होता है। पूरे देश में भी आज से 5-6 राज्यों में विधानसभा इलेक्शंस भी स्टार्ट हो गए। अब ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पे बवाल करती तो यही जो
तथाकथित लोग हैं जो अपने आप को इनका रहनुमा बताते हैं और अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर बताते हैं, वो ये चिल्लाते हैं कि भैया वोट के पोलराइजेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो को लेकर बवाल मचा रही है। हालांकि ये जो आरा शेख है वो गिरफ्तार हो चुका है। जब गिरफ्तार हो चुका है तो बवाल मचाने की क्या बात है? तो सीधी सी बात है भैया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या वाकई में हिंदुओं का ठेका लेकर रखा हुआ है क्या? कांग्रेस भी तो है, तृणमूल कांग्रेस भी है, राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी ठेका लिया हुआ है। आजकल मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वो तो मस्जिद मस्जिद भी घूम रहे हैं, वो भी कुछ बोले। तृणमूल वाली मैडम से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस हिसाब से बंगाल में ये काम हो रहा है, अब बस सोच के देखिए कि हिंदू बहुसंख्यक है, ये सोच के देखिए अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो तो क्या होगा। पाकिस्तान में जो स्थिति है वही होगा। वहां पे लड़कियों को उठा लिया जाता है, जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है और छोटी छोटी बच्चियों का धर्मांतरण करा के, मतांतरण करवा के उम्र दराज लोगों से शादी करवा दी जाती है अपहरण करने के बाद। बांग्लादेश में भी लगभग यही स्थिति है। अभी भी आंख कब खोलेंगे हम लोग? कितना टाइम है हमारे पास? सोचिए, आज हम 140 करोड़ की आबादी है। हो सकता है कि जब सेंसस आ जाए तो हमारी आबादी 150 हो जाए। वैसे ही कुछ ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो जातिगत जनगणना भी करवा लेते हैं हिंदुओं की बांटने की, कि भैया इसलिए हम बांट के रख रहे हैं कि उनको जिसकी संख्या होगी उस हिसाब से उसके विकास का रास्ता खोला जाए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि बांटने का काम तो हर एक राजनीतिक पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू को मुस्लिम से बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस और उनके समर्थित पार्टी जो है, जब हिंदू मुस्लिम में नहीं सक पाई तो हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम कर रही है। लेकिन हम हिंदू क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे आराध्य पे कोई जाता है, कोई ऐसा अधर्मी, ऐसा कुकर्मी, ऐसे मलेच्छ जाते हैं, वहां पेशाब करते हैं, चले आते हैं और हम यूं ही बैठ के देखते रहते हैं। और शायद यही स्थिति रही होगी अफगानिस्तान के कुछ हिंदुओं की और कुछ सिखों की, जो उनको वहां से लौटना पड़ा। हम सिकुड़ते चले जा रहे हैं। क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में एक चीज बिठा दिया गया है कि नहीं, हिंदू सेक्युलर है, हिंदू कॉम्युनल नहीं है। अरे भैया, हिंदू ना कॉम्युनल है ना सेक्युलर है। तुम ये कृत्य करोगे तो कहां से तुम सोचोगे कि तुम्हारे प्रति कोई संभाव का विचार रखेगा? मुसलमान के जितने बड़े नेता जो किसी इशू पे खड़े हो जाते हैं, ओवैसी जैसे नेता, और उनके जो बड़े मुसलमानों को जो अपना वोट बैंक समझते हैं, जो उनका तारनहार है, खेवनहार है, हर क्षेत्रीय दल, चाहे टीएमसी की ममता बनर्जी हो, बिहार के नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, या फिर उत्तर प्रदेश के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव, किसी ने कुछ नहीं बोला है। क्यों बोलेंगे? वो उन्हें पता है कि भैया देखो, मुसलमानों का वोट तो हमारे पाले में तो आता ही आता है, हिंदुओं का वोट तोड़ दो जातियों में, बस खेल खत्म। ऐसा कोई करे तो उत्तर प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले की वीडियो गाजियाबाद का आया था, एक लड़का यूं ही बोल रहा था कि हिंदू तो कीड़े मकोड़े की तरह है, वक्त आने दो सब सफा कर देंगे। अभी वो हवालात की वो गिन रहे हैं, क्या कहते हैं उसके, सड़िया गिन रहे हैं गेट का। सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया था उसने। लेकिन इसी देश में पश्चिम बंगाल भी है, वहां जा करके इस तरीके का दुष्कृत्य किया जाता है। धार्मिक भावनाओं को ठेस ही नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये समझिए कि कितना बड़ा कांड हो सकता था। नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यक्ति को किसका सह मिला हुआ है, किसके सह पे आखिर ये काम कर रहा है। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से सटा हुआ जगह है, आखिर वहां के जो लोग हैं, बहुसंख्यक आबादी है, जो हिंदू आबादी है, कहने का मतलब ये, वो भी बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, वो सो चुकी है इस घटना के बाद। मतलब सोचिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप जिस आराध्य की पूजा करते हैं, जिस आराध्य से आप मांगते हैं, जिस आराध्य को आप सब कुछ समझते हैं, उस आराध्य के मंदिर में जाके कोई एक मलेच्छ इस तरीके का कार्य करेगा तो हम क्या करेंगे। अब देखिए किस तरीके से एक ये बंगला जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, उसमें इन सब की बातचीत हो रही है, रोकने की भी कोशिश की जाती है लेकिन ये रुकता नहीं। लेकिन अब यही सोचिए, जयपुर में कन्हैयालाल को के एक डीपी लगाने से, हाँ ना उसके बेटे के कहने से उसका गला उतार दिया गया, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये वही देश है जहाँ पे जब हमारे इष्ट को के मंदिर में जाके पेशाब कर दिया जाता है तो हम उस पर कुछ बोलते भी नहीं, और यही सुसुप्तावस्था हम हिंदुओं को ले डूबेगी, बर्बाद कर देगी। हम लगभग सो ही नहीं रहे, हम बेहोश हो चुके हैं, हम उस अवस्था में जा चुके हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, अरे रहने दो यार, अपना दाल रोटी चल रहा है, छोड़ो, वो दूसरे गांव का मंदिर था ना, अपने गांव का थोड़ी है। पुलिस ने इसे पकड़ लिया होगा, पकड़ ही लिया है, गिरफ्तार कर लिया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। इसके परिवार वालों ने यह भी बता दिया कि 2017 से मानसिक रोगी था। कमाल की बात है ना, सर्टिफिकेट पहले से तैयार रहता है मानसिक रोगी का। हा? इसी तरीके का एक कांड होता है, एक ट्रेन में एक रेलवे के कांस्टेबल ने किसी बात विवाद को लेकर के पांच लोगों की हत्या कर दी थी। बड़ा बवाल मचा था, बहुत बवाल मचा कि भाई मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जा नहीं सकता है, आ नहीं सकता है, अब तो पुलिस वाले भी हत्या करने लगे। आज वो सब चुप बैठे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी चुप बैठी है। क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पर? इसलिए नहीं बोले हैं कि भैया मेरा वोट बैंक जो है नाराज हो जाएगा 20-25% का। अब बाकी 80% वाला जो वोट बैंक है वो तो अंधा है ही, वो तो मेरे कहने पर सेकुलर हो ही चुका है, मेरे कहने पर भाईचारा की बात करता ही रहता है, भले ही उसकी कितनी बम्बू होती रहे, वो तो हमें वोट दे ही देगा। लेकिन वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलेगा, वक्त बदल रहा है, वक्त बदलना शुरू हो चुका है। तमाम राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप की घटना को ना होने दें, अगर होता है तो सिर्फ जेल में ही ना डालें, जो सजा का कठोरतम व्यवस्था है वो दें, ताकि देख के दूसरे लोग डरें और ऐसे दुष्कृत्य को ना करें। और अगर ये चीज बार बार होती रहे तो, हालांकि नाक के ऊपर तो पानी जा ही चुका है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हिंदू इसको देख के नहीं समझेंगे, लेकिन ये समझिए कि जहां बहुसंख्यक आबादी है वहां ये स्थिति है, अगर अल्पसंख्यक आबादी हो जाए तो क्या होगा। खैर इसमें बहुत सारा मैंने कोई टॉप बैंड नहीं लगाया, कोई लोअर बैंड नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वीडियो और मेरे विचार। अगर मेरे विचार किसी को बुरे लगते हैं, 4, 5, 10, 20 रोटी एक्स्ट्रा खा लेना भाई, और मन लगा के खाना, और कमेंट में जरूर लिखना, फिर मैं तुम्हारे हर कमेंट का जवाब दूंगा।
आखिर हमारे मंदिर में तुम जाके तुम किसने अधिकार दे दिया, किसने तुम्हें इतना ताकत दे दिया कि तुम इस कार्य को करो? तुमने हमारे ज्ञानवापी मस्जिद को ले लिया, मंदिर को मस्जिद बना दिया। तुमने कृष्ण जन्मस्थल को मस्जिद में तब्दील कर दिया, राम जन्मस्थल को मस्जिद में तब्दील कर दिया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उस मंदिर को तुमने मस्जिद बना दिया। ऐसे हजारों मस्जिदें हैं जिसको तोड़ के तुम लोगों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया, फिर भी तुम्हें हम लोग चैन से रहने दे रहे हैं। तुम लोग क्या चाहते हो? हुँ? उकसाने की ये जो एक्टिविटी है ना करो, और नहीं करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है, इनके नेताओं का आता है। उन नेताओं से आग्रह है मेरा कि धर्म जो है जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। और आप इसे जो भी बंदा है आरा शेख, उसकी बेहतरी के लिए आपने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन आपके भाषणों से और आपके वक्तव्यों से ये इतना प्रभावित हो चुका कि उसने ये कार्य किया। और ऐसे ही कुछ लोग केरला से, उत्तर प्रदेश से भी, महाराष्ट्र से आईएसआईएस के लिए भी लड़ने गए थे, किसी के प्रवचनों को सुन करके। जो आजकल किसी दूसरे देश में है, अपने आप को इस्लामिक थिंक टैंक बतलाते हैं, वो उनके उपदेशों को सुनकर के वो राइफल लेकर के AK-47 लेकर के आईएसआईएस के साथ लड़ने सीरिया पहुंच गया। बताइए भाई, बातें बहुत सारी हैं, बहुत आराम से बातों को किया जा सकता है, लेकिन आराम से करने के बाद अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो परिणाम बहुत ही भीषण हो सकता है। तो भीषण परिणाम ऐसा कि लोग तो यहाँ तैयार बैठे हैं, यूएन को बुला लाओ, अपने जो अब्बू हैं पाकिस्तान को बुला ले आओ, उनके जो दादा हैं चाइना उनको ही बुला ले आओ, अमेरिका को बुला ले आओ, है? लेकिन अभी सब लोग भूल गए कि परिदृश्य बदल चुका है। यहाँ की राजनीति पूरी तरीके से केंद्रित है, और जब केंद्र में एक ऐसा बंदा है जो कोई प्रेशर अपने ऊपर आने नहीं देता है। खैर, 100 बात की एक बात, बंगाल में ये घटना हुई है, हो सकता है कल बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो। आप किसी भी दल के समर्थक हो, कोई इशू नहीं है। आप भाजपा के समर्थक हो, आप कांग्रेस के समर्थक हो, आप राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हो, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन जब आप बहुसंख्यक आबादी है ना, जब आपके आराध्य के साथ कोई ऐसा कार्य करेगा और आप पार्टी लाइन की बात करके चुप हो जाओगे, इसका मतलब तो साफ होता है कि पार्टी लाइन आपको पंगु ही नहीं, अपंग ही नहीं, नपुंसक बनाने का कार्य कर रही है। तो नपुंसक ना बने, कुछ ना कुछ करें ताकि आपके आस पड़ोस के मंदिरों में ऐसे मलेच्छ ना आए, आपके मंदिरों को ऐसे प्रदूषित ना करें, क्योंकि मंदिर है तभी सनातन है। क्योंकि मंदिर में हर दिन सुबह शाम लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मंदिर जाना ही छोड़ दें ऐसे दुष्कर्मियों की वजह से। खैर, बातें बहुत लंबी हो गई हैं, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पार्ट में, मेरे हिस्से में जो कार्य था वो भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं किया इस वीडियो को लेके, लेकिन अपनी एक स्टेप जरूर लिए है उसके तरफ, और कोशिश करूंगा मेरे साथ जो कुछ लीगल एड वाले लोग हैं मैं उनसे बात करता हूं। क्या राज्य सरकार को सिर्फ गिरफ्तार करवा देना इस बंदे को काफी है? क्या राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि ऐसी घटना क्यों हुई, इसके मन में किसने क्या भर दिया है? मैं अपने लीगल टीम से बात करूंगा
और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट क्या कहता है। हालांकि पीआईएल भी इस पे डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डलेगा, पीआईएल भी डाला जा सकता है। अब जब बात पीआईएल की हुई है तो डाली ही जाएगी कि आखिर बंगाल में एक सरकार पोषित आतंक इतना बढ़ चुका है कि धर्मस्थल में जाके, हिंदुओं के धर्मस्थल में जाकर कोई पेशाब कर देता है। खैर, अब ज्यादा बात करने का नहीं, एक बार फिर से वीडियो को देखिए और इजाजत दीजिए। बात छिले मन निजे जीवन ओ मना से उच्च नहीं ने जीवन रहता है हम हेगे मुति देबो मिति दिल तो जीवन हेगे मुति देबो बात छिले और निजे जीवन रहता है वहां छूरे का मैं भाई करती है ना लेकिन ऐसा कुछ है मूल्य का तुम्हें खोल ले लाठी रे दे बे ए बात तो बोल रहा ए तुम मूल्य का है निजे जीवन रहता है के की वो तू रखा खुने तुम्हारे तो मूल्य का मार के मुतरेगा भागो तुम मुतरेगा बच्चे मुतरेगा